Hello students, today our topic is Introduction to Computer Networks and this is Unit 3 of your syllabus, and as you know this is the revision part of your syllabus. So in this lecture we are going to discuss some important question answer related to Introduction to Computer Network. So first of all let us discuss the syllabus because the syllabus is changed for year 2020-21. So now, as you know that this unit is totally introduced, totally new as far as the syllabus is concerned. Before this, there is a unit 3 named Software Engineering, which is totally different from computer networks. But now computer networks basically replace software engineering. So this is the unit Introduction to Computer Network, and these are the different parts in which we can divide this unit. You can easily see on the screen that basically 5 parts are there: 1, 2, 3, 4, and 5. And as far as question is concerned, basically this unit is divided into two basic types of questions. First of all, first part contain the theoretical part in which definitions or some application based question answer are asked, and in second part some numerical related to a computer network are basically asked from this unit. So now our focus is on introduction to computer network, types of networks, LAN, WAN, WAN. This is basically this is the most important question and asked so many number of times in previous IP information practices question paper, because before 2018 computer network is a part of IP syllabus. Okay, so you can, if you want to know what type of question answer are asked from computer network, you can easily see the question paper, previous year question paper, and some topics are removed and some topics are introduced. So these are the topics which are newly introduced to your computer network, which is not other part of the previous IP question paper. Okay, and these all are the parts that are also the part of information practices syllabus as far as the old syllabus is concerned. So let's start. First of all, introduction to network and types of network. LAN, WAN, WAN. So there is a possibility that there is a question asked from this topic LAN, WAN, WAN, and it is basically 1 or 2 mark question. And sometimes LAN, WAN, WAN is related to computer network numerical portion also, in which it is asked that particular structure is given, and there is a question asked that which type of network is there, or we can say that it is not a numerical type problem, it is a basically application based problem, in which it is asked that it is a LAN, it is a whether MAN or WAN, or particularly in a campus what type of LAN network is required. If the campus is a school or a university, we require a LAN, MAN, WAN. So basically if the definition is clear, if the concept is clear, if you have a clear idea that what range belongs to LAN and MAN, WAN, then you can easily give the answer. So basically the concept is very important. First of all, the difference and the concept. So first of all, let us start with LAN, WAN, WAN. Okay, सो लैन वैन वैन से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? बेसिकली क्वेश्चन यही आएगा कि लैन वैन वैन क्या है. सिंपल क्वेश्चन अगर ये होगा तो चांसेस कम है इसके, लेकिन पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि लैन वैन वैन क्या है. ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है और किस इसका क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया है इसकी डिस्टेंस. एक और होता है पैन. तो पैन भी पूछा जा चुका है, जा सकता है, मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए. तो पैन, लैन, वैन, वैन क्या है और इनकी रेंज क्या होती है और ये नेटवर्क्स किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दूसरा क्वेश्चन नेटवर्किंग डिवाइस से आता है, डेफिनेटली आएगा. पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हब और स्विच के बारे में पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पूछेंगे, और डिफरेंस भी पूछा जाता है हब और स्विच के बारे में. लेकिन बाकी आपको पढ़ना तो सभी है, मॉडर्न, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर एंड गेटवे. तो हब और स्विच में डिफरेंस कई बार पूछा जा चुका है. सो अगर हम इन दो टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो लैन, वैन, वैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक नेटवर्किंग डिवाइस पूछी जा सकती है आपसे. तो जब लैन, वैन, वैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना क्या, आपको टू द पॉइंट लिखना है. उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बेसिकली
वो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, नॉट मोर देन दिस। तो इससे ज़्यादा का होने वाला नहीं है। और आईपी के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन होता भी है तो वो इट इज़ अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भी नहीं, 1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा। क्लियर। और सेकंड नेटवर्क डिवाइसेस से एक टोपोलॉजी से क्वेश्चन आता है। अब इसके साथ ही वही है कि ये न्यूमेरिकल का पार्ट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि किस तरह की, मान लीजिए एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया आपको और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें किस तरह की टोपोलॉजी फॉलो होगी लैब को कनेक्ट करने के लिए, डिफरेंट लैब में डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, और एक कंडीशन दे दी जाएगी आपको। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। बाकी जो रेस्ट इसका पार्ट है वो डेफिनेशन बेस्ड है, तो टर्मोलॉजी बेस्ड है। टर्मोलॉजी डायरेक्ट पूछी जा सकती है, जैसे वीओआईपी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वीओआईपी, और वीओआईपी शॉर्ट नोट लिखिए, डिफाइन द टर्म वीओआईपी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे, ऐसे ही कुकीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन मैन और नेटवर्किंग डिवाइसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैन, लैन, मैन, वैन। आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये डिस्टेंस के बिहाफ पर किया गया है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जब कभी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसमें यही पूछा जाएगा कि इसमें आप ये इसमें लैन टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन आएगा, मैन आएगा, वैन आएगा। नेटवर्क के अभी आप जानते हैं, जैसे रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने अभी फिलहाल। तो फर्स्ट पार्ट में तो थ्योरी आएगी, सेकंड पार्ट में जो एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर है वो सब पूछे जाएंगे अभी। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, जब उसका रिवीजन टेस्ट होगा तो हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा टॉपिक यही है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं। और तो आता है, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले फुल फॉर्म लिखनी होगी, सेकंड उसकी डेफिनेशन और उसकी रेंज आपको मेंशन करनी होगी। तो आई थिंक अभी फुल फॉर्म क्लियर हो गई होगी। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो क्लासिफिकेशन है ये एरिया या डिस्टेंस जितना कवर करता है नेटवर्क, उसके बिहाफ पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, चाहे वो पैन हो, लैन हो, मैन हो या फिर वैन हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको यही समझना है कि एरिया कवर क्या था, कितनी डिस्टेंस का करता है। तो देखिए, अगर हम पैन की बात करें तो पैन की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर रेडियस का है। तो 10 मीटर तक की डिस्टेंस की अगर हम एरिया कवर करने की बात करते हैं, रेडियस याद रखिए, पॉइंट रेडियस, ठीक है। तो उतनी डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा। जैसे आपने किसी ब्लूटूथ से कोई डिवाइस कनेक्ट की है तो पैन का एग्जाम्पल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो या आपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है तो वो भी पैन का ही एग्जाम्पल कंसिडर किया जाएगा। तो ये सभी पैन के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर्सनल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है पैन की, ठीक है। क्योंकि हम अपनी डिवाइसेस को अपने लैपटॉप से, अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से अगर हमें जैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है, जहाँ डिस्टेंस जो होगी 10 मीटर रहेगी रेडियस के टर्म्स में। तो 10 मीटर की रेडियस में अगर हम किसी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल माना जाएगा। बात करते हैं लैन की। तो स्कूल में, क्या स्कूल के कैंपस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो जब हम कनेक्टिविटी करते हैं या हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो लैन का एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि कोई भी कैंपस नॉट मोर देन 10 किलोमीटर्स रेडियस से ज़्यादा का नहीं होगा। ये तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर। तो आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में लैब को कनेक्ट किया गया है तो वो किसका एग्जाम्पल है, लैन वैन पेन का। लैब के सभी कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट किया गया है, या 2 लैब हैं, दोनों लैब को आपस में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, या ऑफिस को कनेक्ट किया गया है, या 4 कैंपस हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर 4 बिल्डिंग्स हैं, उनको कनेक्ट किया गया है आपस में। तो ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द लैन। बिकॉज कोई भी कैंपस होगा, स्कूल होगा, जो मैक्सिमम उसकी जो रेडियस होगी 10 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होगा, तो वहाँ पर फिर हम हमारा आंसर लैन होगा। जैसे मैंने बताया था, ये क्लासिफिकेशन है, डिस्टेंस के ऊपर है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की हम बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन डिस्टेंस के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 10 मीटर से तो ज़्यादा होगी, तो पैन का तो एग्जाम्पल नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर आ जाएगा आपका लैन। इसलिए इसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में, किसी कैंपस में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम कनेक्ट करते हैं
डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। नेटवर्किंग का ये टाइप लोकल एरिया नेटवर्क में आता है या लोकल एरिया नेटवर्क से बिलोंग करता है। बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं हम जानते हैं कौन कौन सी सिटी है, दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, आपका कोलकाता है, चेन्नई है, दीज आर ऑल आर द मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो एरिया होता है वो एक नॉर्मल कैंपस के एरिया से काफ़ी ज़्यादा होता है, अबाउट 100 किलोमीटर रेडियस का एरिया होता है वो। तो ऐसे अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटी में जैसे हम कनेक्ट करना चाहें नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। या सिंपल वर्ड्स में इसको समझें कि 100 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अगर हम कनेक्ट करना चाहें, मैक्सिमम है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा, जब यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है मैक्सिमम दे रखी है, तो वो आपका फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है। तो एक सिटी एंड इट्स विसिनिटी अप टू 100 किलोमीटर रेडियस। नेक्स्ट आता है वैन, एंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ग्लोब। तो अभी वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इससे ज़्यादा 100 किलोमीटर से अबव जितना होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है जनरली। तो 100 किलोमीटर से आप ऊपर रेडियस का जितना भी एरिया मानेंगे वो वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा। उसमें एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट और एक ग्लोब, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये डिस्टेंस के बिहार पर अगर हम कहें तो ये इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि ये लैंड मैन पैन या वैन है। अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर एक आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक यूनिवर्सिटी है, उसकी 4 बिल्डिंग्स हैं और उसी 4 बिल्डिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है नेटवर्क के थ्रू। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल माना जाएगा। और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस भी दे रखी होगी। सपोज वो डिस्टेंस बिल्डिंग के बीच में दे रखी है आपकी 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस दे रखी है। आपको बताया जाएगा इसको आपको इंटरकनेक्ट करना है, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे, लैन मैन वैन पैन, किस टाइप का नेटवर्क है। तो ऑब्वियसली वो लैन होगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये डायरेक्ट आपको इसको क्वेश्चन को पूछा जाए कि लैन वैन का क्लासिफिकेशन बताइए, और मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज़ वो कभी बहुत कम पूछा जाता है आपसे, पूछा कुछ इसी तरह से जाएगा। तो वहाँ आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वो लैंड मैन वैन किसका एग्जाम्पल है। अब एरर रेट्स की बात करते हैं। तो एरर रेट्स की बात करते हैं तो एरर पैन में और लैन में काफ़ी कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो एरर होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। मैन के अंदर मॉडरेट और वैन के अंदर हाईएस्ट, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि डिस्टेंस कम है ऑब्वियसली, तो स्पीड तो ज़्यादा होगी मैन में मॉडरेट स्पीड और वैन में। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम पैन से वैन की तरफ मूव करते हैं तो एरर रेट्स आपके बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन स्पीड जो होगी वो भी आपकी कम होती जाएगी। क्लियर है। अब कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी, उतनी ज़्यादा नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। तो पैन में तो नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, जैसे हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं अपनी, तो उसमें क्या कॉस्ट होगी, कुछ भी नहीं, नथिंग। लैन में इनएक्सपेंसिव है, कोएक्सियल केबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं जनरली। ये हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ये अदर मीडियाज़ हैं, वायर्ड और गाइडेड और अनगाइडेड जिसे हम बोलते हैं, वायर्ड और नॉन वायर्ड। तो फिलहाल यहाँ पर बात यह है कि देखिए ट्रांसमिशन कॉस्ट, जो नेटवर्किंग कॉस्ट कब बढ़ेगी, नेटवर्किंग कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप केबल का यूज़ करोगे मैक्सिमम, और नेटवर्किंग डिवाइसेस का। और वो कब होगा, वो जब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी मैक्सिमम उतना ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको रिपीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिपीटर क्या काम करता है, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है, आगे सेंड कर देता है। तो कभी सिग्नल वीक हो जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो वो रीजनरेट करता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये काम रिपीटर का होता है। तो जहाँ रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कहाँ रिक्वायरमेंट होगी, स्मॉल डिस्टेंस पे तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लार्ज डिस्टेंस पे रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरीके से डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट, केबल की रिक्वायरमेंट ये बढ़ जाती है, सेटअप भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो एक ये भी पॉइंट है इसका, नेटवर्किंग कॉस्ट। तो बेसिकली तो फर्स्ट पॉइंट है, तो आपको याद ये रखना है माइंड में अपने कि ये जो पैन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, इसकी डिस्टेंस 10 मीटर रेडियस की होती है। लैन की 10, मैन की 100 और वैन की कोई अपर लिमिट नहीं, 100 से ऊपर वो सब वैन हो जाएगा। और इन सभी नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है।
तो एक और डेफिनेशन आती है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड द इंटरनेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए लैन मैन मैन, तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है आपस में। तो ये जो एग्जाम्पल माना जाएगा किसका कंसीडर होगा, ये एग्जाम्पल होगा आपका लैन का। तो ये लैन 1 हो गया, ये लैन 2 हो गया, ये लैन 3 हो गया, ठीक है। अब इन सभी को आपने कनेक्ट कर दिया, या अलग अलग सिटी में इन सभी को कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। और बाहर कहीं किसी और सिटी से आपको इसका इंटरकनेक्शन करना है, आपको कनेक्ट करना है, तो ये फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा वैन का। तो इस तरीके से पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो वो नेटवर्क आपका हो जाएगा लैन, ठीक है। और विद इन अ सिटी करना है तो मैन, और एक सिटी से दूसरी सिटी में तो फिर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैन। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये टोटली डिस्टेंस की बात है, ठीक है। डिस्टेंस भी याद रखनी है, पैन फॉर 10 मीटर, मैन फॉर लैन फॉर 100, लैन फॉर 10 किलोमीटर्स, मैन फॉर 100 किलोमीटर्स एंड अबव 100 वैन हो जाएगा वो आपका। तो ये डिस्टेंस याद रहनी चाहिए। तो अगर आपको डिस्टेंस क्लियर है तो आप बता देंगे लैन मैन वैन पेन किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन द लैन मैन वैन इज दैट लैन इज अ नेटवर्क that covers a small geographical area such as residence, school, or an office building, while a MAN is a network that covers an area larger than a LAN but smaller than WAN, such as a city, and the WAN is a network that covers a large geographical area such as a country. Thus, LAN means local area network, MAN means metropolitan area network, and WAN means wide area network. तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल, डिफरेंस, डेफिनेशन, फुल फॉर्म। अभी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा और देखते हैं इसको। तो अगर एग्जाम में ये डिफरेंस ही लिखने को आता है आपको कि डिफरेंस बताइए, और ये 1 मार्क्स से ज़्यादा को क्वेश्चन है, तो फर्स्ट डिफरेंस आपको फुल फॉर्म होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म के अपने मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ये याद रखिएगा। अगर कुछ भी पूछा जाता है आपको, और नेटवर्किंग में ऐसी काफ़ी टर्मिनोलॉजी आती हैं जिसमें आपकी फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे लैन वैन वैन हो गया, VoIP हो गया, ठीक है, आपका मॉडम हो गया। तो इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म, लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। रेंज अभी हमने डिस्कस की थी, 1 to 10 किलोमीटर लैन होता है। अब यहाँ पैन की बात नहीं हो रही, पैन हालांकि अलग से पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो आप ये ना समझें कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो पैन पूछा नहीं जाएगा। पैन पूछा जा सकता है, और बड़ा आसान सा है याद करना। पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम अपनी मोबाइल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, रेडियस जो होगी 10 मीटर तक की रेडियस होगी, तो 10 मीटर के रेडियस के अंदर हम वायर्ड या वायरलेस तरीके से कैसे भी अगर हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैन, इसलिए उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। तो 1 से 10 किलोमीटर तक का लैन, 100 किलोमीटर तक का आपका मैन, और मोर देन 100 बियॉन्ड द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर वो आ जाएगा आपका वैन। तो फर्स्ट पॉइंट तो डिफरेंस जो होगा वो फुल फॉर्म की टर्मिनोलॉजी, फुल फॉर्म की फॉर्म में होगा। सेकंड जो डिफरेंस होगा वो रेंज की फॉर्म में होगा। अब मीडिया की बात करते हैं। तो मीडिया, गाइडेड मीडिया, वायर्ड या वायरलेस क्या यूज़ करेंगे, तो वायर्ड को बोलते हैं गाइडेड, और नॉन वायर्ड को बोलते हैं अनगाइडेड, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया में क्या आते हैं, कोएक्सियल केबल आती है, ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आती हैं, ये सब गाइडेड मीडिया में आते हैं। और अनगाइडेड मीडिया में क्या आता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, ये सभी आपके गाइडेड अनगाइडेड मीडिया में आते हैं। तो चलिए गाइडेड मीडिया की बात करें तो ये लैन बेसिकली जनरली इसमें हम गाइडेड मीडिया ही यूज़ किया जाता है इसके अंदर, जबकि मैन के अंदर गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडिया यूज़ करते हैं। देखिए गाइडेड मीडिया यूज़ क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है अनगाइडेड मीडिया यूज़ नहीं कर सकते या उसके बिना लैन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए कि केबल की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है अगर डिस्टेंस कम हो तो। डिस्टेंस ज़्यादा हो तो केबल की कॉस्ट तो ज़्यादा होगी ही होगी, साथ में ये एक रिस्क बना रहेगा, केबल अगर कहीं से बीच में ब्रेक होती है तो डेटा ट्रांसमिशन भी आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो उस केस में अवॉइड किया जाता है केबलिंग के थ्रू डेटा सेंड करने को। इसको ऐसे समझिए आप। तो जनरली लैन के अंदर हम गाइडेड मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे वो कोएक्सियल केबल, जनरली तो कोएक्सियल केबल यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है क्योंकि उसका डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी क्या है इसके अंदर, लैन के अंदर जनरली तो हम गाइडेड मीडिया ही यूज़ करते हैं, यानी केबल ही यूज़ करते हैं, और उसमें भी कोएक्सियल केबल। पहले ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जाती थी, टेलीफोन लाइन में जो आपने देखा होगा यूज़ की जाती हैं, लेकिन जनरली कोएक्सियल केबल ही यूज़ होती हैं। और वैन के अंदर गाइडेड और अनगाइडेड दोनों ही यूज़ होती हैं।
गाइडेड में इसमें यूज़ होती है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। कोएक्सियल केबल के एक तो इसकी डेटा ट्रांसफ़र रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, दूसरा ये भी है कि एक जो चांस बना रहता है डैमेज होने का वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में कम होता है, कोएक्सियल केबल में ज़्यादा होता है। तो कोएक्सियल केबल ही यूज़ होती है मैन के अंदर, तो गाइडेड और अनगाइडेड दोनों यूज़ होती हैं ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, जबकि वैन में हम टोटली अनगाइडेड मीडिया यूज़ करते हैं। देखिए आप बात को समझिए आप, अगर हम मुझे दो कंट्री के बीच में नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ केबलिंग का कोई बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता, क्लियर। तो वहाँ अनगाइडेड मीडिया ही यूज़ होगा। ये ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिग्निफिकेंस नहीं होगी उसकी कुछ भी, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि हम लैन के अंदर गाइडेड मीडिया यूज़ करते हैं, मैन के अंदर गाइडेड अनगाइडेड दोनों यूज़ करते हैं, और वैन के अंदर ओनली हम अनगाइडेड मीडिया ही यूज़ करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली लैन सबसे चीपर होगा, मैन थोड़ा सा कॉस्टली होगा, और वैन तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस कॉस्ट ये सब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें इक्विपमेंट्स क्या यूज़ होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम लैन की बात करें तो इसमें अंदर NIC, स्विच और हब यूज़ किए जाते हैं। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, अभी मैं आगे आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा, और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है अलग से। तो स्मॉल एरिया के अंदर जब कभी भी हम नेटवर्किंग करनी होती है तो वहाँ नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है केबलिंग के अलावा भी। तो उसमें एक NIC आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वो कार्ड होता है जिसके बिना आप नेटवर्किंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सभी कंप्यूटर के थ्रू, NIC के थ्रू ही ये केबलिंग होती है इसमें। नेक्स्ट होता है स्विच और हब, तो इनको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैन के अंदर मॉडेम और राउटर की ज़रूरत पड़ती है, और वैन के अंदर माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सभी इसके अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अभी इसके जो 5 पॉइंट्स हैं, लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 5 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका मोर देन 2 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 पॉइंट्स लिखे आएंगे। देखिए इसमें आपका फुल फॉर्म होगी, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, तो उसको एक पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो देना कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं उसको अवॉइड भी कर देंगे तो आप सोचेंगे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। तो कभी भी अगर आपको इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है तो पहले आप उसकी फुल फॉर्म दीजिए, देन आफ्टर उसका एक्सप्लेनेशन, देन आफ्टर एग्जाम्पल, और जो भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या जो भी है वो दीजिए। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म तो सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देंगे, फिर उसके रेंज के बारे में बताएंगे। रेंज के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन नेटवर्क का रेंज के बिहाफ पर ही किया गया है कि कितने ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेंज तो आपको बताना ही होगा। इसके बाद इसके अंदर कौन सा मीडिया यूज़ होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्पीड कितनी होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कॉस्ट की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा एग्ज़ाम में जो पूछा जा चुका है, जा सकता है आपसे, वो नेटवर्किंग में ये है कि कॉस्ट के ऊपर भी है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है। आप जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम चूँकि सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जा चुका है, तो वहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, और टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अवॉइड कीजिएगा इसको आप एक्सप्लेन करें कि पैराग्राफ की फॉर्म में अवॉइड कीजिएगा, और पुट टू द पॉइंट लिखना है आपको, क्लियर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि लैन मैन वैन के बीच में डिफरेंस पूछा है, इन दोनों में से किसी एक के बीच में पूछा जा सकता है। जैसे लैन और मैन के बीच में, मैन और वैन के बीच में, लैन और वैन के बीच में, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ भी उसी तरीके से आपको टेबल को रिड्यूस कर देना उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक ये मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना तो कर ही लोगे। तो मिनिमम 4 पॉइंट्स होनी चाहिए, और फुल फॉर्म इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। फुल फॉर्म के अपने मार्क्स होते हैं, अपनी एक सिग्निफिकेंस देने की। जब कोई टर्मोलॉजी पूछी जाती है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्लियर हो गया आपको। तो शॉर्ट में ऐसे समझिए कि लैन मैन टाइप ऑफ नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क के टाइप्स है ये रेंज के या जोग्राफिकल एरिया के यहाँ पर किया गया है, और इसमें डिस्टेंस मैटर करती है ओवरऑल, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे गए हैं अभी इतना ज़्यादा ये, लेकिन पिछले IP पेपर्स में जहाँ ये लिखा हुआ था, मेंशन था, वहाँ तो ये पूछे जाते थे। लेकिन अभी चूँकि ये स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अभी यहाँ मुझे नहीं लगता कि इनमें से बहुत ज़्यादा कुछ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक थोड़ा सा आपको फुल फॉर्म और उसकी टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे अदर टॉपिक से कोरिलेट करते हैं वहाँ पर। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, ठीक है। तो फर्स्ट नेटवर्क था ARPANET, और इसकी फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछा गया। ARPANET क्या है,
तो ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। और ये फर्स्ट नेटवर्क था जो बेस बना इंटरनेट का, इसी को बेस बना के इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया बाद में। तो 1969 थी आपकी ईयर, और ये एग्जिस्टेंस 1969 में इसका एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है। और फुल फॉर्म थी इसकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो 1980s में फिर आपका NSF नेट आया, जो इसका एडवांस वर्जन था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और 1990 में ARPANET और NSF नेट को मिला के और अदर प्राइवेट नेटवर्क्स को मिला के एक इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर। तो इंटरनेट का जो बेस है वो ARPANET है, जो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, याद रखिएगा। तो कभी कभी दो चीज़ें हैं, ये पूछा जा सकता है इंटरनेट, ठीक है, बहुत आसान पेपर हुआ तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट, हालांकि चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेट सिंपल वर्ड्स में अगर स्मॉलेस्ट डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हम कहेंगे कि 3 वर्ड्स के अंदर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इंटरनेट होता है आपका। और इसका जो बेस है वो था आपका ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा इसका, 1969 डेट। क्लियर? आगे देखते हैं। तो वही जो अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ पूछे जा सकते हैं, कुछ जा चुके हैं, और ये आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। एग्ज़ाम में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये बातें नहीं पता होंगी तब तक आप दूसरे टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज़ नथिंग बट ओनली द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटर स्पेस, तो प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा चुका है, इंटर स्पेस क्या होता है। इंटर स्पेस एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मल्टीपल यूज़र्स को ऑनलाइन कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें वो रियल टाइम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट 3D एनवायरनमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो इसको इंटर स्पेस बोलते हैं। सो इंटर स्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that allows multiple users to communicate online with the real time audio, video and text chat in the dynamic 3D environment। ऐसे ही एक पॉइंट है नोट्स, तो यहाँ याद रखिएगा एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और क्या काम करता है ये किसके लिए है पहले तो ये समझ लीजिए। मल्टीपल यूजर्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, कैसे? ऑनलाइन। और क्या करेंगे यूजर्स? इसके थ्रू अपनी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट को 3D एनवायरनमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। पहली बात तो एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनलाइन। और थर्ड ऑनलाइन है, इसके अंदर क्या शेयर करेंगे? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट, किसमें? डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट में। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है नोड्स, जिसे वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। क्या होता है? तो नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से, उनको हम नोड्स या वर्क स्टेशन बोलते हैं। सो द टर्म नोड्स रिफर्स टू द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू ए नेटवर्क एंड सीकिंग टू शेयर रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। देखिए नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है रिसोर्स शेयरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपको कंप्यूटर में 20 कंप्यूटर्स, आपकी लैब में 20 कंप्यूटर्स हैं और आपको उन सबको कनेक्ट करना है, ठीक है, तो कनेक्ट कर देंगे आप। लेकिन आपके पास प्रिंटर एक है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि नेटवर्किंग के थ्रू ऐसा पॉसिबल हो कि कमांड किसी भी कंप्यूटर से दी जाए, प्रिंट आउट आप आसानी से निकाल लें उसका। तो आपको किसी पेन ड्राइव की ज़रूरत ना हो जिस कंप्यूटर से आप प्रिंटर कनेक्टेड है, बल्कि वो प्रिंटर सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, तो विदाउट यूजिंग द पेन ड्राइव आप नेटवर्किंग के थ्रू सेम प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटर एक ही है आपके पास, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से ये पॉसिबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिसोर्स शेयरिंग, क्योंकि रिसोर्स को शेयर किया गया। एक ही सेम रिसोर्स है, एक सेम प्रिंटर है, और उस सेम प्रिंटर को डिफरेंट किसी भी कंप्यूटर पर हमने उसको एक्सेस है हमारे पास, और हम उसको शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी सभी कंप्यूटर के लिए, तो उसको रिसोर्स शेयरिंग बोला जाता है। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल बताया मैंने। तो कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत रिसोर्स शेयरिंग के लिए पड़ती है। रिसोर्स शेयरिंग में सिर्फ प्रिंटर ही नहीं आते, हम मेमोरी को भी शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की मेमोरी को दूसरी कंप्यूटर में देख सकते हैं, ठीक है, डेटा को आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो ये सब भी है। अभी जो नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनको हम नोड्स या वर्क स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आता है बैकबोन। बैकबोन क्या है? बैकबोन इज अ सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ ए ट्री और द स्पाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये एक सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, और ये क्या काम करता है? ये 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 नेटवर्क को ऐड करता है, कनेक्ट करता है। तो 2 और 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो
इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम बैकबोन बोलते हैं। ओके, सर्वर आई थिंक सभी जानते होंगे, सर्वर एक कंप्यूटर है जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, जिसके थ्रू आप डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं। न सिर्फ डेटा शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर और मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर में बेसिकली जो क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर होता है वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को फॉलो करता है, जहाँ मास्टर सर्वर होता है, स्लेव आपके अलग अलग डिफरेंट आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, और क्लाइंट कंप्यूटर को परमिशन देने का काम सर्वर करता है। तो सर्वर के थ्रू ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है दूसरे कंप्यूटर्स को या क्लाइंट कंप्यूटर्स को कि वो डेटा को शेयर कर सकें। तो सर्वर क्या काम करता है? सर्वर पहली बात तो एक कंप्यूटर होता है और ये आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा शेयरिंग की, सॉफ्टवेयर शेयरिंग की और हार्डवेयर शेयरिंग की। क्लियर? तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोला जाता है, जहाँ पर सर्वर जो होता है आपका मास्टर होता है और जो क्लाइंट्स होती हैं वो स्लेव की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी बोला जाता है यहाँ पर। और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल जो होगा वो सर्वर के पास होगा, ठीक है, क्लाइंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो क्लाइंट को ओवरऑल कंट्रोल जो करने का काम करता है वो सर्वर करता है, जो एक कंप्यूटर होता है आपका, और इसके थ्रू हम डेटा शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सर्वर का भी अलग क्लासिफिकेशन है। सर्वर है नॉन डेडिकेटेड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। तो नेम ही बता रहा है आपका नॉन डेडिकेटेड सर्वर। नॉन डेडिकेटेड सर्वर आर नॉट completely dedicated to cause of serving. Such servers can be facilitate the resource sharing among workstations on a proportionality smaller scale. The small network using the such server are known to peer network. तो देखिए अभी मैंने आपको मास्टर स्लेव का एग्जांपल बताया, वो प्योर सर्वर था आपका, लेकिन यहाँ पर सर्वर नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या काम करता है? नॉन डेडिकेटेड सर्वर काम ये करता है कि वो फुली जो होता है वो डेडिकेटेड नहीं होता सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बाकी क्लाइंट मशीन्स को, वो बस रिसोर्स शेयरिंग का काम करता है जनरली। तो ये बेसिकली इसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। तो ये जनरली ये करता है कि जो वर्क स्टेशन है या जो नोड्स हैं उनके बीच में रिसोर्स शेयर हो स्मॉल स्केल पर, तो उसे हम नॉन डेडिकेटेड सर्वर बोलेंगे। और जब डेडिकेटेड सर्वर की बात आएगी तो जैसे नाम है डेडिकेटेड सर्वर, इसमें एक सिस्टम जो होगा पूरी तरह से रिजर्व्ड होगा, फुली रिजर्व्ड होगा। किसके लिए? सर्वर्स जॉब के लिए। तो जो भी मैंने सर्वर के काम बताए थे, एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, ठीक है, इन सबको शेयर करने के लिए, तो ये सब जो काम होंगे ये सर्वर के थ्रू होंगे, मेन सर्वर के थ्रू होंगे, और कोई काम नहीं करेगा, बस उसका काम रिसोर्स शेयरिंग का ही होगा। तो ये जो वर्क करता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन डेडिकेटेड और डेडिकेटेड सर्वर। तो अभी ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आई थिंक आज के लिए जो वीडियो था वो 2 पॉइंट्स को कवर करता है। एक तो कुछ जनरल मैंने टर्मिनोलॉजी बताई, उन सबको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वो दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी आपकी, अलग से शायद ही पूछा जाए उनको, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लैंडमैन पेन से डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से और लॉन्ग के हिसाब से भी उसको आपको समझा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।